चलिए भावना शुरू करते हैं, तब तक वो आ जाएगी। क्या नीलम, आपने 4-5 Yes, sir. टॉपिक लिखे हैं। Yes, sir. जस्ट हाँ, चलो फर्स्ट टॉपिक कौन स्टार्ट करोगे आप? Sir, but in fact, none of the topics were that important in today's newspaper, other than Bhopal gas tragedy and the air pollution that I read. Yes. But sir, with regard to wolf warrior diplomacy, I read the article, sir. I did not understand much. I felt it was more to do with Chinese history. So I did not understand that article, sir. It is not important. It is not important for you. But just start from the Bhopal gas case. That is the most important article of the day. Start. Sir, what exactly is the situation is that Bhopal gas tragedy happened in 1984. But after that, the compensation which were given to the victims was in terms of the assessment done in those years. But later on, the government realized that there has been a large number of other people who have been affected, because even the genes, or it is the poison has affected the genes, and there are people who are suffering from cancer, and it's kind of become heredity. So now there is a curative petition which is taken up by the Supreme Court, and they have ordered for an additional compensation to be paid for the victims who were affected by this tragedy, sir. So this was the gist. What is the curative petition? Sir, curative petition was a judicial innovation in the Ashok Hura and the Rupa Hura case, I think in 2002. It is the last resort of justice if they feel that their justice has not been done, or if there's no if there are more people who are to be heard, and if they have not got a chance to hear them. So in that case, people would usually go for a curative petition, sir. Just write down something, right? The curative petition is emanated from Article 137 of the Constitution, where the review of the judgment or orders by the Supreme Court is being under consideration. The Supreme Court has the extraordinary power, and in the exercise of its wide powers, Supreme Court has also coined the remedy of curative petition. As you said, the constitutional bench of Court Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra it came into the existence and a curative petition could be filed against any final order or judgment of the court. अब इसके बाद आप लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 2 करके, if it vitiated by the point number 1 non-observance of the principle of natural justice. If it is vitiated by the non-observance of the principles of natural justice, point number 2, or on account of abuse of the process of the court. Next point, curative petition cannot be allowed merely for reappreciation of evidence. लिख लिया? Yes, sir. Neelam, you came back? Yes, sir. Sorry, Yeah. एक कॉल आ गया, सर कट गया कॉल. आप जब आप ये काम हम लोग साथ क्लास किया करो, सारे क्लास बंद कर दिया करो. You put the mobile phone on the airplane mode. It is a very serious business. I don't allow the aspirant to go on the call and come back again. Sorry, sir. Yeah, just I'm telling my own modus operandi. We are working person. We are helping you, and we have to struggle a lot to take out the time for this class. अगर आपका कॉल आ रहा है, आप जा रहे हो, तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा. ये बहुत सीरियस बिजनेस है, कोई फायदा नहीं होगा. अगर मैं बोल रहा हूं या सॉरी बोलने से आपने 1-2 लाइन भी छोड़ दी, तो आप पूरी चीज मिस कर जाओ, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसी से इंटरव्यू का पॉइंट डिराइव होगा. मिस हो गया, फिर मिस हो गया वो. तो नाउ आई हैव टोल्ड यू द 3 थिंग्स. पॉइंट नंबर 1, vitiated by the non-observance of the principle of natural justice. Point number 2,
abuse of the process of the court. Point number 3, reappreciation of evidence. Whether on this background, suppose this question is coming to the interview, whether on this background, the curative petition will lie or not lie. Yes, Akash. You understood what is the curative petition? If you read the whole article is based on one concept of the curative petition. If you are unable to understand the curative petition, you will struggle in the interview board. We told a number of times to you that whatsoever language or word is being used in the interview, you need to prepare it. Suppose you have said it is due to the curative petition, and the board has asked what is curative petition, you will go on blank. You should not go on blank. So first understand what is the curative petition. As Bhavna has just explained a part of the article, and she has said that it is due to the curative petition. Then you said what is curative petition. Now come on the next part. Whether the curative petition will lie or not to lie. You have got the 3 point. आपने लिख लिया है? Yes, sir. तीनों. हाँ, तो आकाश और तीनों में कौन सा पॉइंट अप्लाई करता है यहाँ पे? So the first and 2, it will lie, but the third one, it means that merely for reappreciation of evidence, it would not lie. So in Yes. with respect to Bhopal gas tragedy, there were a large number of victims who were left out or who did not get a chance to be heard. So You I just think tell- on the basis just- of principles of natural justice. Yes. If you see principle of natural justice, abuse of power, and repression of the facts, principle of natural justice is applied. If you are going to answer this question, you will say the principle of natural justice has not been applied because a large number of people has not been heard. Their grievances has not been appreciated. You got my point? Yes, sir. Now, Akash, you tell the same thing. Akash, you speak. Same thing. आपको सब पता हो गया ना? Just try to structure your answer. Just speak. जो चीज अभी मैंने बताई उसी को आप एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो. आवाज नहीं आ रही आपकी. आवाज अनम्यूट करो. अनम्यूट. हाँ, Yeah. Curative petition can be filed in Supreme Court when there is an incidence of non-occurrence of principle of natural justice, as well as on account of abuse of the process of the court, and it cannot allowed merely for appreciation of evidence. आंसर आपका इनकम्प्लीट है. What is the question? How the curative petition may lie in the Bhopal gas case? Sir, in Bhopal gas tragedy, there is, I feel that the grievances of the people at large is not addressed, and it violates the principle of natural justice, and that's why curative petition can be filed in the Supreme Court. Neelam? Yes, sir. Neelam, हाँ, you speak. सर जी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत सारे जो लोग हैं उनका ग्रीवेंस अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है. बहुत सारे लोग का मतलब नेचुरल जस्टिस से बाहर रह के उनको उनके ग्रीवेंस को सॉल्व नहीं किया गया है, उनको सुना नहीं गया है, इसीलिए क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की गई है. आप इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हो ना? जी सर. अच्छा, वेरी गुड. आप सर इसी को आप बोलो. लिसन सर, सर लिसन, he will give you more. Yes, sir. Everyone, please understand this. First, I'll brief you for 30 seconds or so, then I will frame the structure of the statement. The first thing that you notice is why it is called curative. What is it trying to cure at all? Okay. There are two parallel aspects when a proceeding goes on in a court. Okay. One is hardcore principles, which are contained in a statute. The second is rules of evidence. One is statutory provisions and the second is rules of evidence. Okay. Statutory provisions are what? As to what is the law that has been challenged, or what is the provision of law underlying a particular suit. That is why that is called a suit. Okay. So suit, when tried by a court of law, that has two different parameters to evaluate whether it has been properly tried or not. Okay. The first is
the provisions of that statute, which is the parent statute, applies on the suit. The second is the procedural way, how it has been dealt with by the court. Okay, so here the term curative, that curative things tries to cure not on what has been tried, but on how it has been tried. Please understand this distinction very clearly. Okay, because there is a presumption in law that there must be a finality to all disputes. This is the presumption कि हर चीज का भाई एक अंत होना चाहिए कभी ना कभी. There should be a finality to all disputes. Because that presumption is honored, it is a presumption emanating from the common law of British times. Okay, because this presumption is held, इसलिए एक ही मैटर को दोबारा आप बार बार नहीं उठा सकते. You understand my point? That is why, in order to uphold the doctrine that there should be a finality somewhere, कि हाँ भाई अब खत्म हुआ, चलो अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब खत्म हो गया. If the liberty to rake the matter up again and again and again is allowed on substantive points, on the points which have already been decided by the Supreme Court on merits, then there is no end to it. Everybody will go and file a revision petition and all. Understand my point? What the Honorable Court is now saying is that, okay, we are going to see if we can entertain this particular petition or not, but only if it relates to how we have tried this suit, not on what we have tried. In other words, we will not consider it on merits. In other words, we will not go for reappreciation of the evidences which have already been considered. ठीक है? What we are going to see, two things. Two things. क्या कोई रह गया है जिसकी बात नहीं सुनी गई हो? दूसरा एस्पेक्ट क्या है? क्या हम में से कोई बायस था क्या? दो ही हो सकता है बस. Either somebody was left out whose stand was not heard by the court, and second, if somebody can demonstrate that the judges were biased. There is no third way. There is no third way. बस यही दो चीज हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती. This is what is being said. Okay, so these are rules of evidence. What are the rules of evidence? The judges should be impartial. Everybody should be heard. Everybody should be given opportunity. Nobody should be punished behind one's back. These are rules of evidences. They are not law. Please understand this. इन्हीं रूल्स ऑफ एविडेंसेस को इंडियन एविडेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया गया है, जो सब लोग फॉलो करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह के लिए. यही फॉलो होता है. नाउ यू अंडरस्टैंड. नाउ हाउ डू वी कंपोज द एंटायर थिंग? You say it like this. As the name suggests, it can be a curative. It is a rare, first of all, you know this, it is a rare remedy. It is one of the rare remedies emanating from so and so article of the Constitution. और अशोक हुर्रा का भी केस था, एक बहुत पहले हम लोग पढ़ा करते थे, 2002 में आया था अशोक हुर्रा. एक्चुअली ये वहां से डॉक्ट्रिन जो है उठी थी. खैर कोई बात नहीं. So this curative petition has its origins from so and so source. As the name suggests, this petition can be moved before the Honorable Court to see whether principles of natural justice have been followed or not. However, it cannot be pressed into service to reappreciate the evidences which have already been considered by the Honorable Court. Full stop. That's how you define it. सारे मनदीप अभी आंसर आप ही करो. मनदीप, यू आंसर दिस. नीलम, आपको इंग्लिश समझ आती है? नहीं तो हम लोग हिंदी बोल सकते, कोई इशू नहीं है. नहीं ना सर, आई कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, ओके. हाँ, जहां दरगाह बोला. हाँ मनदीप, आप सेम आंसर करो. Yes, sir. Sir, the curative petition is one of the rare remedies available to the litigants in the Supreme Court. This can be filed only in certain conditions. It can be filed against any final order of the court only if it is vitiated by, number one, non-adherence to the principles of the natural justice. Number two, when the process of the court is being abused, and it cannot be filed in cases where there is only reappreciation of the evidence. So in Bhopal Gas Tragedy case, the litigants say that some of the litigants were not heard, so they are filing curative petition on that ground. Very good. Good. नीलम, आप फिर से बोलो. नीलम, फिर से बोलो. जी सर. हाँ ना, बोलो. सर, क्यूरेटिव पिटिशन एक ऐसी पिटिशन है जो लिटिगेंट कोर्ट में फाइल कर सकता है जब दो कंडीशन है इसके लिए. जब नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ हो, और सेकंड जब कोर्ट का प्रोसेस सही तरह से नहीं हुआ हो, या फिर कोई उसमें कमी रह गई हो. नीलम, थोड़ा आप हिंदी ज्यादा इस्तेमाल करो. मैं आपको आपकी बात को हिंदी में कहता हूं कि क्यूरेटिव पिटीशन को कोई वादी तब प्रस्तुत कर सकता है जब उसके नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों का हनन हुआ है, या उसको पूरी तरह से न्यायालय ने सुना न हो. तो अपने अधिकारों के लिए वह एक क्यूरेटिव पिटीशन को
को प्रस्तुत कर सकता है। जब आप हिंदी बोलो तो कोशिश करो कि हिंदी थोड़ा से ज्यादा बोलो, थोड़ा अधिक बोलो। हम लोग आपको अलग से आपकी थोड़ा हिंदी की क्लास देंगे, क्योंकि हिंदी का आपका डिक्शन, हिंदी का आपका जो बोलना है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग आपको अलग से टाइम देंगे जिससे आपकी हिंदी और इम्प्रूव की जाए। आकाश, आप बोलो सेम चीज। Sir, curative petition is a rare remedy which is filed by any litigant when the principle of natural justice is not observed, or on the account of abuse of the process of the court of justice, and it cannot entertain on the ground of just reconsideration of the evidence on the basis of merit. भावना, आप आइए, बोलिए। Yes, sir. सेम चीज फिर से बोलिए, फिर अगेन रिपीट। Yes, sir. So, curative petition is a very rare remedy which had its origins in the Ashok Hura and the Rupa Hura case. A curative petition can be filed when it's felt that the principles of natural justice are not properly followed. But however, it cannot be filed for the cause of just reappropriation of evidence. ओके, तीन चार चीज आप और लिख लीजिए। जो आर्टिकल 137 ने जो रिव्यू ऑफ जजमेंट की बात कही है, उसमें 3 पॉइंट को नोट कराई है। रिव्यू will lie on the following 3 grounds. Number 1, discovery of new and important matters or evidence. Number 2, mistake or error apparent on the face of the record. Number 3, any other sufficient reason. If now you expand these 3 points to the curative petition, then you will very clearly see all these 3 points are applicable, and point 2 and 3 are directly applicable. You got it? Sir, can you please repeat the point number 2? Point number 1, discovery of new and important matters or evidence. Point number 2, mistake or error apparent on the face of record. Point number 3, any other sufficient reason. Now you have got the 3 points for the review of judgment by Supreme Court under Article 137, from where the case of Ashok Hurra case has emanated. Now you just see a few points in the article of the Bhopal gas case. Point number 1, मिथाइल आइसोसेनेट MIC, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि पूछ लिया कौन सी गैस निकली, आपको पता ही नहीं है। तो दिसंबर 23, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस जो है वह यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से बाहर निकली, वो बाहर चली गई। और जो क्यूरेटिव पिटीशन हुआ है, फाइल क्यों हुआ है, वह इस बात के लिए फाइल किया गया है कि जो $470 मिलियन, $470 मिलियन का जो सेंटर को ने जो नवंबर 2010 के कंपनसेशन मिला था, वह फिक्स किया गया था 1989 के सेटलमेंट पे। गवर्नमेंट ने एक एडिशनल अमाउंट मांगा है 675.96 करोड़, जिसको वह कंपनी देने से इनकार कर रही है। अब जो बेसिस क्या है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट मांगने का बेसिस क्या है? जब मई 1989 में यह पैसा दिया गया था, उस समय ओनली अराउंड 3000 डेथ नोटिस की गई थी। गवर्नमेंट का जो क्रेडिट पिटीशन है 2010 कहता है एक्चुअल फिगर वाज 5295 डेथ्स। वो बाद में दिसंबर 15, 2022 को 5479 हो गई। इसके अलावा कैंसर और रेनल फेलियर के केस, आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे लिखा दिया, इसको कोई जरूरत नहीं है। बाद में कैंसर के, रेनल फेलियर के केस बहुत बढ़ गए, डिसेबिलिटी बढ़ गई और माइनर इंजरी बहुत लोगों हुई है, और जो फिगर है वो 5 लाख से ज्यादा हो गई अगर इंजरी को देखा जाए। अब इन्होंने जो क्रेडिट पिटीशन फाइल हो रही है वो अशोक हुर्रा केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं क्या आर्गुमेंट है यूनियन कार्बाइड का।
पेपर में लिखा है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसमें दो लिमिटेड ग्राउंड है, वन दैट ही और शी वाज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एंड टू दैट द जजेस वेर बायस्ड। उन्होंने दो ही लिखा है, मैंने आपको और डिटेल में बता दिया। अब आर्गुमेंट क्या है यूसीसी का? यह एक कंसेंट डिग्री थी। हरीश सालवे अपीयर किए हैं, उनका सेटलमेंट वाज अराइव्ड एट ऑन द बेस ऑफ कंसेंट डिग्री सोर्स फ्रॉम ए सूट। अगर वो डिक्री सेट असाइड, जस्ट राइट टू अंडरस्टैंड दिस, if the decree was set aside, the suit proceeding should be restored. और दूसरी बात, liability of UCC for treasury was never established. You just see the argument of the UCC, it will strengthen more your argument in the interview board. अगर आप जानते रहोगे, liability of the UCC treasury was never established. जो सेटलमेंट किया गया था उस सेटलमेंट में देयर वाज नो रीओपनर क्लॉज, कि आप केस को फिर से रीओपन नहीं कर सकते हो। इन द सेटलमेंट मोर एंड मोर लायबिलिटी कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन इट्स क्लाइंट एंड व्हेन फ्रेश डेटा वाज रिवील्ड। नेक्स्ट, fresh documents and material cannot be inserted into the court record in the limited jurisdiction of security petition. Just see Harish Salve argument. It is very interesting argument. अगर ये argument आपके पास इंटरव्यू बोर्ड में आता है, you have to counter if you are taking the plea that. अगर ये आपके पास तर्क आपके इंटरव्यू बोर्ड में आता है तो आपके पास इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि आप इसको सामना कर सके, क्योंकि तीनों आर्गुमेंट अच्छे हैं। आर्गुमेंट नंबर 1, इट वाज सेटलमेंट सोर्स फ्रॉम द केस, कोई रीओपनर क्लॉज नहीं, कोई क्लॉज नहीं था। लायबिलिटी कभी उसकी लायबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। नाउ यू आर्गुमेंट ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ स्टार्टिंग विद द नीलम, अब यहां शुरू करो कि क्या अगर इंटरव्यू बोर्ड ये 3 पॉइंट बोलता है तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि सके हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए? नीलम जी सर। हाँ, तो आपको पूरा केस समझ में आ गया ना? यू गॉट द कंप्लीट आर्टिकल? जी सर, आपने बताया जैसे। हाँ बस उसी, जो बताया उसमें बाहर कुछ नहीं है, उसी से आप शुरू करो। अब आपको 3 पॉइंट दिए गए कि यह जो आपका यूनियन कार्बाइड का जो केस हुआ था उस केस में क्यूरेटिव पिटीशन कहां बनती है, आप बताओ। टेल मी सर, अभी आपने बताया कि इसमें सेटलमेंट भी नहीं हुआ था, सिर्फ ये सेटलमेंट था और इसमें यूसीसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं लगाई गई थी। तो फिर सर इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको देखिए, आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप सरकार के स्टैंड को जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। जी सर, ये जनरल। हाँ, आप कोशिश करो। आप तो सोचो, तो भावना के पास अब सोचो इसको। यस भावना, बताओ। So the first thing that I feel is that even in the 1989 settlement, whatever funds was given by UCC, it was very insufficient and it was very paltry. It did not satisfy the claims of all the people who were affected. And on the grounds of human rights, there has been too many deaths, and even now there are many children who are suffering from the inhalation of poisonous gases which happened during the Bhopal gas tragedy. So on these two lines, I think that the people should not suffer because of the act of negligence which has happened on the part of UCC. Akash? Sir, as we have seen that the death of the relevant event is very high, and so I feel that there is a violation of human rights, as well as Union Carbide also should act in a responsible way. Like they should apply corporate ethics in their business. Like there is a issue, like they act very irresponsibly. So I feel that in long term, if Union Carbide act in a responsible way and applied corporate ethics, as well as if they uphold the human rights, as well as the human values which provided
by our constitution. So in that sense, I feel that that line of argument I will put forward. Mandeep? Sir, the effects of the gas leak from the Union Carbide factory are being felt even today. The new generations that are coming, they are facing many diseases. So that was not accounted in the settlement arrived at in 1989. So the central government's argument that the impacts of the gas leak are far beyond what were inculcated in that settlement are valid, that the compensation should be increased, keeping in mind the number of people who are affected by the gas leak. सर बनाओ कुछ आंसर. सर इन लोगों में से कुछ लोगों ने बोला सर लायबिलिटी के बारे में कि लायबिलिटी जो टर्म लिखा हो कि लायबिलिटी वाज नॉट फिक्स्ड. सो लायबिलिटी जब शब्द बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं ना, द केसेस ऑफ दिस काइंड वेयर देयर इज अ नेग्लिजेंस और समथिंग लाइक दैट, देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड. नंबर 1 is vicarious liability and number 2 is absolute liability. Okay, so on the count of vicarious liability means that the owner will be responsible for the action of its agents, as simple as that. So the first line of argument of UCC was at that time that we cannot be held responsible because it was not us, it was not the management or the owners of the company who were present there and they are liable for this tragedy. No, we were not. This is vicarious liability. So they said that as far as compensation and civil things, tort, this comes under tort law. तो टॉर्ट लॉ का जहां तक सवाल है वहां तक आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये कंपेंसेशन होना चाहिए, दैट इज ऑल राइट, बट वी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन अ क्रिमिनल केस. ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी वेरी क्लियर that this concept of vicarious liability does not apply to criminal cases. So they said कि compensation तो ठीक है कि हम जिम्मेदार हैं, but criminal case cannot be brought against us. ये खाली जानकारी के लिए बता रहे हैं. Leave it now understand it and forget it. Now come back to the main point. What is the main point here as to what is the ground of opposition by the other party against the government's request or government's petition for curation? What is the main argument? The main argument is that it was already settled. When the settlement was arrived at, then it was already settled that any new claims will not be made. That is what it is. But then, when the very assumption of fact on the basis of which this agreement was framed, that assumption itself changes, then nobody can stop entertaining a new compensation. This is under a settled law. Please understand this. The number of deaths, the number of the nature of consequences and after effects of that tragedy, they were only statically fixed at that time. कि ये हुआ है, इतने लोग मरे, इतने मरे. If a data, if a new finding, new evidence that comes or new effect of the tragedy comes into picture, then there is nobody who can bound somebody new who can enter the claim of compensation. Okay, that is not how law works. So ऐसे कहेंगे. अब इसको आप कंपोज करिए स्ट्रक्चर को. कैसे कहेंगे कि the grounds of opposition by the other part, by UCC, can be refuted on the basis of the argument that the earlier settlement was based on certain assumption of facts. These facts have now come out, they have now found been to be much more than what was assumed at that time of settlement. That is why the curative petition of the government is fully justified. That's all. तो लाइन में खेल खत्म कर देना. But you understand? नीलम आप कोशिश करो. जी सर. सर इस केस में क्यूरेटिव पिटिशन इसीलिए फाइल की जानी चाहिए कि पहले जो डेटा मिले थे उससे अभी जो डेटा मिले हैं उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा उससे जो प्रभावित लोग हुए थे अभी उससे ज्यादा कहीं डेटा में अभी और ज्यादा प्रभावित लोग हुए हैं, इसीलिए क्यूरेटिव पिटिशन फाइल होनी चाहिए. एक और बात समझनी चाहिए आपको, बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये. लॉ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट पार्टी टू दैट सेटलमेंट, आरंट दे? मान लो कोई 10 आदमी ऐसा है जिसको उस दिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ उसे, तो वो सेटलमेंट में नहीं आए, पार्ट नहीं बने. बाद में उनको किडनी फेलियर डेवलप हो गया, बाद में उनको कैंसर डेवलप हो गया, तो वो तो उसका पार्टी ही नहीं थे. हाउ कैन दैट सेटलमेंट स्टॉप दिस न्यू पीपल फ्रॉम क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबॉडी? ये तो नई पार्टीज हैं जो कि उस सेटलमेंट का पार्टी भी शायद नहीं रहे होंगे. So they have discovered the effect of this tragedy later on. And there is no law which can stop them from entering the claim of compensation. They are as worthy of claim as the original parties. ठीक है? इस बात को देखिए, आपका सारा आर्गुमेंट उस प्रीमाइस से स्टार्ट हुआ जिसको आप लोगों ने नहीं देखा और नीलम ने बोल दिया साहब ये डिफरेंट नहीं हो सकता. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड.
नेचुरल जस्टिस। जो आदमी उस समय विक्टिम नहीं था उसको मौका ही नहीं मिला। दूसरा बोले देयर इज नो रीओपनर क्लॉज। नो रीओपनर क्लॉज के न होने का मतलब ही तो नहीं आप रीओपन नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाई क्यूरेटिव पिटीशन, व्हाई देयर इज रिव्यू पिटीशन, नो देयर इज नो स्टॉपेल अगेंस्ट एन इक्विटी। इक्विटी भी तो कुछ होती है। देयर आर सो मेनी आर्गुमेंट्स यू कैन से दैट, डोंट ट्राई टू से साहब नहीं हो सकता। तो आप इसको पूरा का पूरा आर्गुमेंट प्ले करें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग है नेचुरल जस्टिस पे, उसका केस जस्टिफाई हो जाए। और हरीश साल्वे का आर्गुमेंट इसी पे डिस्ट्रॉय भी होगा। केस को आगे चलने दीजिए, जब केस का जजमेंट आएगा तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है इसी पे केस जो है पूरा बनेगा। तो आप लोग देखिए, ये आप आंसर क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज यू नो द क्यूरेटिव पिटीशन। अगर आप क्यूरेटिव पिटीशन नहीं जानते, आंसर आप नहीं कर सकते थे। तो हमारा इस जो अपनी जो एक्सरसाइज का सारा पर्पस क्या होता है कि आप उस आर्टिकल को उस आर्टिकल के बियॉन्ड जाके पढ़ने की कोशिश करें। इस आर्टिकल में क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कम लिखा गया था, ये आपने ज्यादा जान लिया। आई थिंक नथिंग लेफ्ट इन दिस आर्टिकल। इसके बाहर से कोई सवाल नहीं। हाँ, या श्योर Sir, just one point, sir. Are they very clear about what is the difference between a review petition and a curative petition? Are you clear about that? Please answer. बताओ। नहीं क्लियर हो? क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन के बाद होता है, इट्स द लास्ट स्टेज। क्योंकि सब डिस्कस हो चुका है और सिर्फ आप छोटा सा चीज नहीं समझ पा रहे, इसलिए आई थॉट आई शुड ब्रेक इट देखो, अप। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? कोई भी फाइनल ऑर्डर हो गया है, एनी फाइनल ऑर्डर, दैट फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स अ रिव्यू पिटीशन आल्सो। रिव्यू पिटीशन इज ए नेचुरल फिनोमेना ऑफ द कोर्ट। हर ऑर्डर का रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकता है, लेकिन हर ऑर्डर का क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं हो सकता है। तो जो क्यूरेटिव, जो मैंने पहले आपको बताया था, जो 3 पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ एविडेंस, मिस्टेक और एरर अपरेंट इन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एनी अदर सफिशिएंट, वो था रिव्यू पिटीशन। आई हैव सेड आर्टिकल 137 में ये तीनों रिक्वायरमेंट रिव्यू पिटीशन की हैं। और जो मैंने दूसरा बताया था वो क्यूरेटिव पिटीशन का है। तो रिव्यू पिटीशन इज ए नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कोर्ट एंड क्यूरेटिव पिटीशन इज ए नॉट नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कोर्ट, इट इज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। अशोक हुर्रा के केस के पहले इसके बारे में लोग बात कम करते थे, अशोक हुर्रा के केस के बाद ये बात सामने आई। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? Please tell us the difference in their scope. Yeah. You asked first. Sir, in fact, I missed it because my internet connection was not good. Okay. So I had What to is the difference between review petition and leave the curative meeting and I had to. That's the question. Sir, review petition is in a normal procedure of the court, wherein any case would go through a review petition if it's filed. However, a curative petition occurs only in the rarest of rare cases, wherein there's a feeling that principles of natural justice has not been observed, or secondly, there's a feeling that the proper justice has not been served, or new facts which were earlier not part of it, or there are few people who are not heard before, and such situations come into light. These things, the curative petition can be filed. However, it can't be filed for the mere reappropriation of evidence. अच्छा, आप लोग लिखो 2 पॉइंट। रिक्वायरमेंट ऑफ द रिव्यू पिटीशन। Review petition will lie on the following 3 grounds. Ground number 1, discovery of new and important matters or evidence. Point number 2, mistake or error apparent on the face of the record. Point number 3, any other sufficient reason. अब देखो अगला पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन। पॉइंट नंबर 1, if it is vitiated by the non-observance of the principles of natural justice. Point number 2,
on account of abuse of the process of the court. Point number 3, curative petition cannot be allowed merely for reappreciation of evidence. In the case of the review petition, is point number 3 is not applicable. Clear हो गया? लिख लिया आकाश? Yes, sir. Yes, sir. नीलम लिख लिया? नीलम लिखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Now Neelam, you answer the question of the story. What is the difference between review petition and curative petition? Answer. जी सर. सर रिव्यू पिटिशन तभी हो सकता है अंडर आर्टिकल 137 जब कोई नया एविडेंस. So listen, Article 137 of the Indian Constitution पूरा बोलने की कोशिश करो. जी सर. जी हाँ सर. पूरा. या आप अपनी प्रैक्टिस में लाओ, जब बोलो कंप्लीट एक सेंटेंस फॉर्म करके बोलो, ओके सर. ताकि ये लगे आप एक स्ट्रक्चर. आप किसी बड़े नेता का इंटरव्यू अगर सुनो, आप ध्यान दो, वो कंप्लीट. आप जयशंकर का इंटरव्यू सुनो कभी, आप वो कंप्लीट बात बोलते हैं, कंप्लीट वैसे सीखने की कोशिश करते हैं. हाँ चलो बोलो. जी सर. सर रिव्यू पिटिशन अंडर आर्टिकल 137 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 137 में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. जैसे अगर 3 उसके लिए कंडीशन है. जैसे अगर कोई नया एविडेंस मिलता है, दूसरा अगर रिकॉर्ड का कोई मिस्टेक या एरर है, तीसरा अगर कोई अदर सफिशिएंट रीजंस मिलते हैं. ठीक है. जबकि क्यूरेटिव पिटिशन है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेमेडी है, जो कि अशोक हुरा केस 2002 में एक इनोवेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 2 कंडीशन में हो सकता है. जैसे अगर नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड नहीं हुआ हो, दूसरा या प्रोसेस ऑफ जो कोर्ट है उसमें कोई अब्यूज रह गया हो, और सिर्फ तीसरा सर तीसरा कुछ नहीं. दैट्स ऑल. तीसरा नहीं, तीसरा सिर्फ क्लैरिफिकेशन है कि कैन नॉट बी अलाउड मियरली फॉर रीएप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस. ये क्लैरिफिकेशन है. 2 ही ग्राउंड है, तीसरा क्लैरिफिकेशन है. जी सर. मेरे ख्याल से. हाँ नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ भावना. Excuse me, sir. Sir, I have some confusions in this topic only. बोलो. Like not with respect to Bhopal gas tragedy as such, but what is going to be the impact of foreign investment, or if any other foreign collaboration or anything, if they want to come and set up any such companies in India, then having these kind of cases, so will it not be a setback? Or how how many times can a case be reopened? Yeah, I understood your point. It will not be Yes, setback because it's a very different structure. Government is not going to harass anything. The person who has been victimized, जिन लोगों के साथ समस्या हुई है, वो लोग अपना पैसा मांग रहे हैं. कोई सरकार जो थोड़ी कर रही है. अगर आप इसको वोडा केस फोन से जोड़ के देख रहे हैं, तो वोडा केस फोन में दूसरा मामला था. वह मामला क्या था? वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उनके पक्ष में, सरकार ने उस फैसले को बदल दिया. यहाँ ऐसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द जुडिशियल प्रोसेस इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड देयर इज अ वैलिड क्लेम. इफ यू सी द वर्ल्ड वाइड, देयर इज अ सिंपैथी टू दीज विक्टिम्स. आजकल जो ह्यूमन राइट्स का जो माहौल है, जो लोग हैं बड़े एक्टिवेट हैं और इसको सपोर्ट करेंगे. इसकी भी संभावना है कि सरकार के साथ कोई समझौता आ जाए कि जो इतना पैसा मांगा जा रहा है उसके बीच सेटलमेंट हो जाए. कुछ ना कुछ पैसा सरकार को मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक. और कहना चाह रहे थे भावना के क्वेश्चन पे. भावना, यू सेड यू यूज द वर्ड्स रीओपन. ऐसे रीओपन करते रहेंगे तो रीओपन हो ही नहीं रहा है. दिस इज नॉट रीओपन, दिस इज क्योर. डोंट कॉल इट रीओपन. दिस इज नॉट रीओपन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूरेटिव ना. Bhavna is I think is impressed by the argument of the Harish Salve, who said there is no reopener clause. In the court of law, the government will take a plea. It's a not reopener clause. It's a justice clause. I'm asking the natural justice. I'm not going to reopen the case. I'm not going to examine your criminal liability. These are the victims. You have said that I will pay them. There are more victims. Who will take care of them? Because it is your company, the mistake happens from your part, so you take the liability. That's the only issue. अब आगे केस आएगा तो बहुत अच्छे आर्टिकल आएंगे. जो हरी साल में आए हैं तो कोई आम केस होगा नहीं. सर, ये लोगों को बार बार ये घूम रहे हैं उसी में सर, डेफिनेशन में सर.
एक लाइन में आप क्यूरेटिव और रिव्यू पिटिशन का डिफरेंस ऐसे समझिए कि रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हो सकता है रिव्यू पिटिशन में और क्यूरेटिव में नहीं हो सकता है. मैटर एंड्स. Yes. Natural justice is the main cause of the curative petition. You can say opportunity of being heard. जो मैंने लास्ट टाइम बताई कि क्यूरेटिव पिटिशन में रीएप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स नहीं हो सकता है, रिव्यू में हो सकता है. नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्यूरेटिव पिटिशन का मेन कॉन्सेप्ट है. मिसयूज ऑफ पावर बाय द कोर्ट एंड नेचुरल जस्टिस. यहां सारा मामला क्या है? होल कॉन्सेप्ट इज ऑन नेचुरल जस्टिस. सारी की सारी अवधारणा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे. नीलम, आप जरा हम लोग की हिंदी में सुनिए. हम लोग आप हिंदी बोलते हैं, आप जरा हिंदी को भी कैच करने की कोशिश करिए. तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा यहाँ पर परीक्षित की जानी चाहिए. तो सारा का सारा मुद्दा इस मामले में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को लेके है. जी सर. ठीक है जी सर. Sir, I have one doubt. यस. मतलब how can we define natural justice? हमको सुना नहीं गया. नहीं सर, ये आदमी को सुना, बस सिंपल सी बात है, हमको सुना नहीं गया. मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला. दैट सिंपल. क्या ना, आप लोग जितना बेसिक हम आपको लिखाते इसलिए हैं ताकि आपका नॉलेज बेस बढ़े, आपके आर्गुमेंट की पावर बढ़े. उसलिए हम सिर्फ आपको फैक्ट्स लाते हैं और किताब से निकाल के आपको चीजों को दे देते हैं. लेकिन कहना बेसिक और सिंपल है, याद रखो. वहां बेसिक बात कहनी है, सिंपल बात कहनी है. और आप चाहे मेंस में लिखो चाहे इंटरव्यू में करो, बेसिक बात से काम हो जाता है. हम इतनी एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि आपका दिमाग खुले. और आपसे इतना हम बोलने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बोलना आपको ये ना, तो आप बोलना सीखो. एक और एस्पेक्ट है, सर ने तो बता ही दिया है कि हमको ठीक से सुना नहीं गया. और दूसरा है कि जज बायस था. नोबडी कैन बी अ जज इन इट्स ओन केस. या जिसका इंटरेस्ट हो वो जज नहीं हो सकता है, जिसका जरा भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो. ये दो कंपोनेंट्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के. तो भोपाल गैस कांड में एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो नए नए सब परिणाम आ रहे हैं कि इनको ये बीमारी हो गया, इनको हो गई, ये न्यू एविडेंस नहीं है. तब तो रिव्यू होना चाहिए. देखो, there is so many arguments government would put forward. Argument number 1, you can put an independent agency to examine the same, because these are the reported cases by the hospitals, by the health workers, by the NGOs. They are not fuzzed. You examine anything. बहुत ही ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का केस है, और मैं बता रहा हूं पक्का इनको रिलीफ मिलेगी, 100% मिलेगी. यूनियन कार्बाइड विल अप्रोच अगेन कि भाई हम सेटलमेंट करें, बताओ हम क्या करें. तो जो ये 6,000 करोड़ 5,000 करोड़ मांग रहे हैं, शायद ये 4,000 करोड़ हो जाए, 2,500 हो जाए, 35, जो भी हो जाए, लेकिन ये केस सुना जाएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा. क्योंकि ये उनको सुना तो गया नहीं ना, क्योंकि अभी ये नहीं, आज से 10 साल बाद भी हो सकता है. बिकॉज दीज आर द कैजुअलिटीज विच आर अकरिंग. जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, कितने सालों तक आया उसका. तो अपने दिमाग को जरा खोलने की कोशिश करो इसमें. सर मेरा प्रश्न एक्चुअली ये था सर कि ये इसको हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है. अब इस पर दोबारा बात तो होगा नहीं सर. कि ये तो नया चीज आ रहा है. हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनको कैंसर होगा, इनको रीनल फेयर होगा. ये तो नया एविडेंस आ रहा है ना पिक्चर में. सब नया एविडेंस है तो रिव्यू होना चाहिए ना. फिर क्यूरेटिव क्यों हो रहा है? अगर आप समझेंगे तो आंसर कीजिए. क्या क्यूरेटिव पिटिशन नए एविडेंस पे हो सकती है? नए फैक्ट या नए एविडेंस आ जाए तो उस पर क्यूरेटिव पिटिशन संभव है क्या? No sir, curative petition is not possible on that. अभी सीखा हमने. तो फिर रिव्यू होनी चाहिए ना. क्यूरेटिव कैसे होगा? But the thing is that those people who are coming as new evidence, their right of being heard has not been implemented earlier. Shaw is raising one more point. कि you can argue this part also. कि sir, why only curative? Why not review? If there is a new evidences, we can go for review petition also. What he's saying, our case is stronger on the both footing, on the review as well as curative. Well, although it is being reported as a curative petition and being fought, sorry, I can say in the argument is it is a review petition. There's more facts also. Therefore, even if it is a review petition, then also it's a review से नहीं होगा, जिसके किसी खिलाफ केस हुआ होगा. I'm not gone the fact that, मुझे ये लग रहा है. हाँ, उसका एक लॉजिकल रीजन है. देखिए, मनदीप ने पॉइंट पकड़ा. ये जो नए केसेस, नए लोग जो आ रहे हैं, वो कंपेंसेशन मांगने के लिए आ रहे हैं. जो ओरिजिनल जो गड़बड़ी फिक्स हुई है उसके लिए नया एविडेंस नहीं है. ये लायबिलिटी उनकी दोबारा से नहीं फिक्स की जा रही है. दे जस्ट वांट कंपेंसेशन ऑन द टर्म्स व्हिच हैव बीन डिसाइडेड. ओके, यस. दैट्स द डिफरेंस. चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे.
हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा इसी पे कर दिया, 50 मिनट। यस, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा है? भावना, भावना कहाँ चली गई? उसका नेट चला गया। आज पढ़ा है मनदीप कोई आर्टिकल? Sir, Yes, sir. हाँ हाँ, क्या आगे? हाँ क्या भावना? sorry for the हाँ. interruption, sir. Sir, I think next we can take up the Joshi Math. हाँ, come on, start. The core of the issue is that recently there has been cracks which are being observed in some buildings of Joshi Math. But nowadays the cracks are widening a lot, and there has also been tilting of 2 hotels which were observed. So the basic reasons for the appearance of cracks was, sir, do I tell all the reasons? Like, do I list out, because there are a lot of reasons in geology or? Just tell. To understand the reasons for the appearance of the crack, firstly, the geology of that particular region where Joshimath is situated. It is on the site of a prior landslide. So it is not on proper land as such, but on the debris of a landslide before. And secondly, it's a very seismically active zone. So it is prone to tectonic shifts, which can cause slight shifting or slight tremors at a continuous basis, or there would be slight tremors which would be occurring in the region. And last year, there has been a sediment slide or an avalanche in the Alaknanda River, which has caused a large deposition of more sediments in those areas. And also it has increased the flow of the river in particular areas, and the river is shifting its course. These would be the natural reasons why there is appearance of cracks. Apart from this, there has been this NTPC, which was involved in having a tunnel for bringing the head pipe or something for its project at Tapovan. And again, the Char Dham project, which is being taken up by the government, that is causing massive tunneling and widening of roads. So it would involve breaking of rocks and other developmental activities which has happened in that particular region because of tourism, unprecedented number of housing and infrastructure projects which have come up there. So all this together has contributed to this kind of issue in Joshimath, where cracks are being appearing in the houses and in other buildings of that region. मैं थोड़ा भावना की ही को मैं और सिंपल कर देता हूं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, flow of rock and glacier, flow of rock and ice glacier mass that descended into the Rishi Ganga. Point number 2, base of hill slopes in Alaknanda Valley sufficiently eroded. Point number 3, construction activities accelerated the removal or rearrangement of subsurface material, underground erosion. Next, substantial discharge of water from a punctured underground aquifer. Next, several geological evidences around Joshimath suggest reduction in the shear strength of debris. ये 5-6 पॉइंट है जिसको भावना बता, उसको थोड़ा से और सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि जो जोशीमठ है, उस जोशीमठ से का जो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों है। अब इस पे अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आप आर्टिकल देखें, जो एक्सलेटेड पुश वाला पॉइंट है वही आप काम का है। अब ये हो क्यों रहा है, अब ये इवेंट क्यों हो रहा है, या भावना कम, ये हुआ क्यों? ये तो 5 पॉइंट हो गए। अब इसका रीजन, अब इस रीजन को बताओ क्यों हुआ ये। Sir, the most immediate reason was that puncture of that aquifer, wherein it was alleged that around 700 to 800 liters of water per minute was oozing out of that aquifer. So that could have caused a geological shift or a geostatic change in that region. देखो, जो हमारी एक रिक्वायरमेंट हो चुकी है क्लीन एनर्जी की, वह एक समस्या पैदा कर रही है।
चूंकि हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि हम क्लीन एनर्जी चाह रहे हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन वह जो हम रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं हाइड्रो पावर्स का, और उसके कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है वह हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेजाइल कर रहा है। तो होना क्या चाहिए हमारे लिए? स्ट्रेस हमारा होना चाहिए इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस लाइन को आप याद करो, environment and conservation for a sustainable development in the Himalayas without ignoring human sufferings and emerging socio-economic impacts the developments cause. तो जो जोशी मठ की ट्रेजेडी है, यह जो एक लोकल पीपुल की मिस्ट्री थी उसको और बढ़ा रही है। मेरे ख्याल से इस आर्टिकल का सब कुछ हो गया, कुछ नहीं रह गया। अब आपको कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना होगा कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करें, उस प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट का क्लियरेंस होना चाहिए। शायद मैंने कभी क्लास बताया था कि एक एनवायरनमेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली जानी चाहिए। अगर एनवायरनमेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट को गो अहेड नहीं किया जाना चाहिए। हमको यह जरूरत है कि हम एक तरह की साम्यता की स्थापना करें, एक तरह के सामंजस्य की स्थापना करें पर्यावरण एवं विकास के मध्य। वी नीड टू एस्टैब्लिश ए सिमेट्री बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। अगर हम पर्यावरण और विकास के मध्य की सामंजस्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे तो ऐसी आपदाएं होती रहेंगी। इफ वी आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश ए सिमेट्री बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट, these type of the tragedy going to happen. How we can do it? You can give a very good answer. In this answer has been by some very great economists. You put every corporate, every government organization, everyone who is going to create any structure in the hilly areas, procure an environment feasible report. That environment feasible report should take care of any damages for those hilly areas. जो एनवायरमेंट फिजिबल रिपोर्ट है वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उस इलाके में किसी तरह की पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हो। अगर ऐसी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को लेके फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनती है तो प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। इट इज ए वेरी गुड आंसर एंड यू विल सेल थ्रू इट। मेरे ख्याल से इसमें कुछ कोई बचा रह गया, कुछ रह गया? भावना बताओ। Sir, yes, sir. Not with regard to this, but when it comes to construction of defense infrastructure, like in Northeast, we are building railway lines up till the end of Arunachal Pradesh, and even we have taken up the Parvatmala Yojana, wherein we are thinking of constructing border roads. So in that case, what should be given more importance, like the environment or the strategic defense installments or connectivity? You may put one more argument here. The peace is important. The peace with my neighboring country is important. We need to have a dialogue with our neighboring countries and arrive at a conclusion or a solution where we touch less on the hilly areas or the border areas. हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करें, वार्तालाप करें, और हम इस बात पर आवें कि इन पहाड़ी इलाकों पर कम से कम सर्चना की जाए। अगर बोर्ड पूछता है इफ देयर इज नो पीस विद योर नेबरिंग कंट्रीज, ब्रदर सर वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव बिल्ड द रोड, वी हैव टू सिक्योर आवर बाउंड्रीज, नेशन इंटरेस्ट इज फर्स्ट। द एनवायरमेंटल इशू इज नॉट नेशनल इशू, इट इज अ ग्लोबल इशू। We can raise this issue at the under international forum. Every country need to adhere the environmental issue. In the era of the climatic change, there is a lot of debate on this issue, and there is a pressure on every country to work for the climate change. मेरे ख्याल से इससे थ्रू कर जाओगे। और कोई इशू? नीलम आप इसको बोलो। पढ़ने के लिए खाली दे देते हैं सर। हाँ बोलो। नंबर 1 जो है वो जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो जान लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, इवन अदरवाइज, क्यों उत्तराखंड हिमालयस जो है, उत्तराखंड के जो हिमालय है, व्हाई आर दे मोर वल्नरेबल
to tectonic activities than other parts of the Himalayas, especially the northern ones. नंबर 2। तीसरा, ये जो इलाका है वो जो साइज्मिक डिवीजन है भारत के, भूकंपीय क्षेत्र जो जितने बांटे गए हैं उनमें से कौन से जोन में आता है। यू शुड नो ऑल दोस 2-3 थिंग्स। और इससे काम होता है। और जोशी मठ का रिलीजियस इंपॉर्टेंट किसके लिए है, सिर्फ हिंदूज के लिए या किसी और कम्युनिटी के लिए भी? दैट इज द लास्ट। यस यस, वेरी गुड पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? So next I read about the role of artificial intelligence in teaching, but these are all very small articles, sir. नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, छोटा सा है, इसको हम लोग कर लेते हैं। अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि ये जो अच्छा क्यों है, यह है आप लोग आईएएस बनने जा रहे हो, आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेड करोगे, तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हम जो क्लासरूम टीचिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होता है, क्या फर्क होता है। शॉर्ट बताओ, बहुत छोटा सा है ये, बहुत छोटा आर्टिकल है ये। Sir, do I tell it? हाँ चल। Sir, it in fact all it wants to say is that how to bring in creativity in our teaching, because today's kids have access to a lot of other sources of learning. So we should not limit ourselves to the normal classroom sessions wherein it is going to be rote learning, but then we have to give an more impetus to their own creativity, wherein the kids can enhance their own creativity by themselves and they can grow more. And how we can use artificial intelligence in bringing this. बेसिकली आर्टिकल इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है कि जो हमारी पहले की टीचिंग स्टाइल है वो कितनी रेलेवेंट रह गई है, कि क्लास में लो, बैठाओ, पढ़ाओ। दूसरा, क्वेश्चन आंसर का मटेरियल किस तरह से हो। जैसे आप लोग 5 लोग हो, ठीक है ना, आप 4 लोग हो, आपके 4 लोगों में चारों के रिस्पॉन्स अलग अलग होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा वो कैच करेगा कि भावना का रिस्पॉन्स क्या है, शॉर्टकमिंग क्या है, आकाश का क्या है, नीलम का क्या है, मनदीप का क्या है। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करें, एक जैसे हम शौर्य आपका क्लास ले रहे हैं, हम क्या करें, एक वेवलेंथ में आपका क्लास ले रहे हैं। अगर मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो तो मान लो हम आपके वेवलेंथ को कैच भी करते हैं, तो समय लगता है, वो तो फास्ट चेक करेगा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह जो पहले के स्टाइल का सिस्टम था उस सिस्टम को चेंज कर रहा है। लेकिन अपने को क्या है, इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जिस तरह का भारत का भौगोलिक, जैसे आपसे सवाल किया जाए क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में पॉसिबल है, थोड़ा भावना क्या है, आर्टिकल को हम लोग एक्सपेंड भी करते हैं, आर्टिकल सारी बात नहीं लिखी होती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में पॉसिबल है? बोला अभी नहीं पॉसिबल है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इंडिया इज ए बिग ज्योग्राफिकल एरिया। स्कूलों की स्टाइल, हमारे पास चैलेंजेस बहुत से हैं, लेकिन इसको एक मॉडल में शुरू किया जाना चाहिए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस। एक अच्छा आर्टिकल है, भावना शायद तुम मिस कर गई हो। चाइना कर देते हैं सर। प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये आपको दिमाग में पहले ही होना चाहिए। जिस एजुकेशन के सेगमेंट की बात की जा रही है कि जहां पर एआई इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा आप कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन भाई, एम्पावरमेंट और एम्पैथी। तो ये ठीक है, आपको अगर शॉर्ट में आंसर बनाना है तो मैं ऐसा कहूंगा कि आप पहले स्टडी कर लीजिए, देन यू से कि इट कैन सप्लीमेंट बट इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द कन्वेंशनल मेथड्स कंप्लीटली। इट कैन सप्लीमेंट वेरी वेल, क्योंकि एम्पावरमेंट वाला काम तो हो जाएगा एजुकेशन से, लेकिन एम्पैथी नहीं आती है। एम्पैथी जो है वो मास्टर टीचर ही सिखाता है। yes. दूसरा, 2 उन्होंने चैट का नाम दिया है, वो आप चैट दे लीजिए, लिख लीजिएगा। दूसरा, सौर ने एक बात कही, वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात कही है कि जो एम्पैथी है वो मशीन नहीं लाएगी, वो व्यक्ति लाएगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। भावना में ख्याल आपने मिस किया चाइना भूटान का जो बॉर्डर टॉक है। देखा था आपने? यस सर, वो कल का न्यूज़पेपर में भी था सर। हाँ सर, in this if I can just shortly tell one paragraph which I think it summarizes the entire article, if I can read it out quickly. बोलो read go. Education cannot be about gathering the cognitive knowledge but has to include the entanglement of our learned knowledge with social, emotional and ethical implications. In an extremely competitive ecosystem with coaching centers creating a factory of efficient computational machines, our view about education and the purpose it serves has become extremely myopic. तो इन्होंने कोचिंग सेंटर पे अटैक किया। देखिए, आप देखिए इस समय दिल्ली में आप जाओ, जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, नीलम देख रही, नीलम दिल्ली में ही है। वो उस कोचिंग सेंटर पे कुछ काम नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है और एक नॉलेज के नाम पर कुछ कहा जाता है।
वह स्टूडेंट की समस्याओं को समझते भी नहीं। दूसरा, इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वह एस्पायरेंट के स्पीकिंग से होती है, कोई कोचिंग सेंटर उसको नहीं समझता है। अगर आप एयर इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें तो हर छात्र की बोलने की स्टाइल अलग होती है, समझने की स्टाइल अलग होती है, उसको वो पकड़ेगा। देन जो सौर का पॉइंट है, उस एयर इंटेलिजेंस की जो कहते हैं फाइंडिंग है, वो टीचर को सप्लाई की जानी चाहिए, तब टीचर उस फाइंडिंग के आधार पर कार्य करेगा। तो यू कैन से ऑल दिस ऑल्सो कि एयर इंटेलिजेंस इज वन एस्पेक्ट that need to be used as analysis, but if you want to impart the values, you want to give the empathy, you want to address the individual student's problem, then the man is important for that. ये भी आप कर सकते हो। नीलम, कोई प्रॉब्लम आपको? चाइना एंड भूटान। हाँ, पहले नीलम, जी सर। कोई एनी प्रॉब्लम? नो सर। जस्ट इन द लाइटर वेन सर, कि आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से इसको ऐसे समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्री और मेंस पास करा सकता है, लेकिन इंटरव्यू पास नहीं करा सकता। हाँ, नहीं करा सकता। यस यस। इंटरव्यू की एक ही प्रक्रिया है कि मेंटर का और स्टूडेंट का संवाद हो, कोई दूसरी प्रक्रिया बनी नहीं है। इतने सालों से हम लोगों को पढ़ाते हो गया है, मुझे कोई दूसरी प्रक्रिया इंटरव्यू समझ नहीं आई है। ओनली डायलॉग, एज मच एज डायलॉग यू कैन डू। उस डायलॉग में आप जितनी मिस्टेक पॉसिबल है सारी मिस्टेक करो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डायलॉग, कि जो मिस्टेक आपकी इंटरव्यू बोर्ड के कमरे में हो रही है वो आप यहां करो। आप क्यूरेटिव पिटीशन है भोपाल गैस स्टडी का केस देखो, आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं, सो मेनी मिस्टेक्स। ये मिस्टेक इंटरव्यू बोर्ड में होती, अगर यहां ना होती तो। अब ये मिस्टेक इंटरव्यू बोर्ड में नहीं होगी, कोई और मिस्टेक हो तो हो जाए, ये मिस्टेक तो नहीं होगी। तो जितना ही आप संवाद करोगे, जितना ही बोलोगे, उतने फर्क आएगा। इसलिए मैं इंकरेज करता हूं, हर आदमी बोलने की अपॉर्चुनिटी सर्च करो। आप लोग 4 आदमी हो, यू ऑल ट्राई टू सर्च द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। हाँ, आ जाओ, चाइना भूटान। Sir, there has been a lot of border issues between China and Bhutan also. But in the past 1 year, they had signed a memorandum of understanding, and now China and Bhutan again wants to expedite the talks. So they have held a Kunming meet in which they have decided that they would push forward for the implementation of. भावना, थोड़ा अपने बोलने का पेस स्लो करो। Yes, sir. Okay, just to practice on this. Your pace is very fast. जब आप चीजों को जानते हो और फास्ट हो जाते हो, ठीक है ना, तो आप उसको कंट्रोल करो। चलो, so that they wanted to have in the sense China and Bhutan had a positive consensus in the Kunming meet which was recently held, and what China has done is, as a goodwill gesture, it has given some supplies to Bhutan. So this is what I could understand from the article, sir. आप आर्टिकल नहीं समझ पाए हो, यू मिस द आर्टिकल। भूटान और चाइना ने एक एमयू साइन किया है जिसमें 3 रोड मैप है, एक्सपेंडिंग द चाइना भूटान बाउंड्री नेगोशिएशंस। चाइना और भूटान के बीच की जो बाउंड्री है उसको नेगोशिएट करने की कोशिश की गई है। 3, आप लिखो पॉइंट नंबर 1, चाइना भूटान के बीच की जो बाउंड्री है उसको नेगोशिएट करने का प्रयास किया गया। दूसरा, दोनों साइड इस बात के लिए एग्री कर गए, दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो गए हैं, implementation of all the steps of 3-step roadmap. Point number 3, भूटान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन, मैं डेट जानू छोड़, डेट का कोई काम नहीं है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जो 3-step रोडमैप है फॉर एक्सपीडाइटिंग द भूटान चाइना बाउंड्री नेगोशिएशंस। अब ये नेगोशिएशन किस बात पर फोकस कर रहा है? 2 एरियाज पे। एरिया नंबर ए, डोकलाम एंड एरियाज along the western borders of the Bhutan and near the India-China-Bhutan tri-junction and the Jarklung and Pasmlung valleys along Bhutan's northern borders. तो 2 एरिया कर रहा है जिसमें एरिया नंबर ए जो मैंने बताया उससे इंडिया का इंटरेस्ट आ रहा है। समझ आ रहा ना? अब इससे न्यू डायमेंशंस क्या आ रहे हैं?
इसके साथ साथ क्या हो रहा कि भूटान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जहां पर संकेतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर करता है, उससे मिलता है, यह एक समस्या भारत के लिए है। अब इसको इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऑब्जर्वर क्या देख रहे हैं? ए प्रेशर टैक्टिक्स टू पुश भूटान टू एक्सेप्ट चाइनाज अर्लियर रिपोर्टेड ऑफर टू स्वैप डोकलाम इन द वेस्ट। अब क्या कर रहा है? वह डोकलाम को वह स्वैप करना चाह रहा है पश्चिम में। इससे क्या होगा? यह चाइना के लिए मददगार होगा, स्ट्रेटेजिकली चाइना को हेल्प कर रहा है। अगर वह भूटान से एक्सचेंज कर लेगा अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी को डोकलाम से, तो वह उसको फायदा होगा। अब आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य को लेके। यहां तक क्लियर हो गया नहीं हुआ? यस सर। नीलम क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, अब आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य पे। अब जो इंडिया के साथ प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी, डोकलाम अगर चला गया चाइना के पास, तो इंडिया के बॉर्डर से प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी। और झारखंड जो पासलांग वैली है अलॉन्ग बॉर्डर, जो नॉर्दर्न बॉर्डर से है, वो तिब्बत के पास होता है। बीजिंग ने रिसेंटली लॉन्च किया है एन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन तिब्बत टू बिल्ड व्हाट इज कॉल्ड द जियोलॉन्ग फ्रंटियर विलेज टू एस्टेब्लिश सिविलियन सेटलमेंट्स। तो चाइना, अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पार्ट पे। चाइना भूटान का जो एग्रीमेंट का बॉर्डर टॉक चल रहा है, वह भारत को किस तरह प्रभावित कर रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। अगर डोकलाम को चाइना ने भूटान से स्वैप करके ले लिया, और जो सांकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों क्या कर रही हैं? ये भारत के नजदीक चाइना को ला रही हैं। इसलिए भूटान और चाइना के इस एग्रीमेंट पर भारत की निगाह है। यह भारत के सुरक्षा के मुद्दे को और संजीदगी से देखने को प्रेरित करेगा। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? Sir, not confusion, sir, but again, other questions which were related to this. Yeah, Like, ask. there was so much of backlash against China for COVID, and even now, the disruptions in supply chain and their aggressive policy with their neighbors. So, is China trying to become soft, or are they following a soft approach towards Bhutan? No, it's not soft approach. It's a strategic deal. It's a commercial deal. It's a military deal. They are putting pressure on the Bhutan. You change the northern front with the Doklam, because Doklam is more strategically helpful to the China. So then we can say that this is a part of their Wolf Warrior diplomacy itself. हाँ, ये आप कह सकते हो। Yes. जो चाइना क्या कर रहा है, अब वहां क्या करेगा? चाइना जहां भी जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जहां भी जाता है। चाइना क्या करेगा? अब देखिए, अगर इस पे देखिए, यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाइना की जो पर्स डिप्लोमेसी है कि अपना चेकबुक खोल देता है जहां भी जाता है, उसी के सहारे आगे बढ़ता है। एनीथिंग मोर? नीलम, आप बताओ। हाँ, बोलो। Sir, with respect to China only, like the recent trade deficit between India China, that also increased. It's more than 100 billion now. ये हम लोगों ने कल के पेपर में था, हम लोग शायद डिस्कस किया था ना? नहीं पढ़ा था ना? Sir, yes sir, but nobody, like not many people were there, no sir. Yes. I thought if it is possible, one day then we can keep it for India, China, and one day India and its neighborhood, because I felt that. Yes, we'll do that. पक्का इसको करते हम लोग। Yes. सर, ये चाइना, सर एक दो पॉइंट बता देंगे, पढ़ लेंगे अपना अच्छे से। नंबर 1, पहले बात तो आपको सबसे, बिफोर यू फिट समथिंग इनटू द स्कोप ऑफ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यू शुड नो व्हाट इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इजंट इट? तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वुल्फ वॉरियर एक तो सीरीज आई थी, मूवीज का एक सीरीज निकाला था उन्होंने कल्चरल अवेकनिंग के लिए अपने चाइनीज लोगों ने। उसमें जो है द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज कि वी विल टेल द चाइनीज स्टोरी टू द वर्ल्ड। ओके, एक्चुअली वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहने को एग्रेसिव है, लेकिन ये अनकन्वेंशनल फॉरेन पॉलिसी है एक्चुअली। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अनकन्वेंशनल फॉरेन पॉलिसी वेयर दे आर आल्सो एंगेजिंग देयर डायस्पोरा which is scattered throughout the world, तो सबको एंगेज करके अपना चाइनीज स्टोरी जो है वो डोमिनेंस का। और दूसरी, जब से इनके ऊपर कोविड का के लिए जो सस्पिशियस अटैक्स हुए हैं ना सारे, की ये सबने बर्बाद कर दिया जानबूझ के, किया ये किया, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने जब से इनको एलिगेशन किया, तब से ये लोग एग्रेसिव हो गए। तो दैट इज द टाइमलाइन ऑफ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट चाइना इज डूइंग विद तिब्बत
is not wolf warrior diplomacy. If you ask me strictly technical, this is not wolf warrior diplomacy. It has nothing to do with that. It's a simple territorial exchange between two countries, between two sovereigns, okay, in their own national interests. तो क्या national interest वो बता रहे हैं भूटान को? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा तो 250 स्क्वायर किलोमीटर है ना डोकलाम, वो हमको दे दो 500, हम तुम्हें दे देते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर के पास. This is what they are luring Bhutan with. That has to be kept in mind, okay? That's very necessary. तो दूसरा पॉइंट ये है इंडिया और चाइना और भूटान के रेस्पेक्ट में. और तीसरा सर ने उस दिन ही बता दिया था कि जहां तक जैसे ट्रेड का बात आएगा ना, ट्रेड इज कंप्लीटली डिवोर्स्ड विद फॉरेन पॉलिसी इन द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो. वी डू नॉट, अनलेस देयर इज एन इन्वेजन, अनलेस देयर इन ऑफेंस, तब तक जो है प्रॉपर ऑफेंस, जब तक बैटल ऑफेंस नहीं होगा तब तक ट्रेड को जो है वो डिप्लोमेसी से एकदम अलग रखा जाता है. तो पहले ही आप लोग जान चुके हैं. तो उसको दैट इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर गोइंग इनटू डिप्लोमेसी कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं जब आपसे चाइना का इतना झगड़ा, वो तो अलग रहेगा. तो पहले डिसाइडेड है जब से फ्री वर्ल्ड इकोनॉमी जब से चली है तब से. तो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. देखा आज के हो गया, काफी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हो गए. तो नीलम आप देख लो, 1-2 दिन आपको अच्छा लगता है जरूर आप ज्वाइन करो. जस्ट सी व्हाट द स्टाइल वी आर डूइंग हियर. आपने दिल्ली में हो तो आपने जरूर कहीं और देखा भी होगा. इट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टाइल वी आर डूइंग सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स. जी जी सर, बहुत अच्छा है ये. हाँ, क्योंकि क्या है, मैं कंटिन्यू करूंगा. just I understand the interview has the 3 part. One, current affairs. One, your educational background and city state background. One, your hobby and interest. And for your 3 mainly 3 part होता है. अब 3 पार्ट में अगर आप इसको डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 1/3 मान के आप चलो. किसी का ज्यादा होता, किसी कम होता है, लेकिन आपको इन तीनों में से कुछ न कुछ पूछा ही जाएगा. तो हमेशा मैं अपने एस्पायरेंट को सलाह देता हूं कि करंट अफेयर्स सबको आता ही आता है, उसमें सवाल आते हैं, उस पर कंप्लीट मास्टरी होनी चाहिए. और अगर आपकी तकदीर अच्छी रही तो करंट अफेयर्स ही आपको आईएएस बना देगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपको बोलने की प्रैक्टिस कैसे कराई जाए, उसमें कुछ मटेरियल चाहिए. अब मान लीजिए आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैथ्स है, उस पे इतना लंबा बोलने का प्रैक्टिस नहीं हो सकता है. करंट अफेयर से बोलने का प्रैक्टिस हो जाता है. तो एक बार आपकी बोलने की प्रैक्टिस अगर करंट अफेयर से आ गई तो आप हर चीज में बोलने जाओगे, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपकी हॉबी हो, चाहे इंटरेस्ट हो. आपका जो डैफ है, हम लोग उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. डैफ पे भी आप लोगों को सवाल जरूर करेंगे. आपका 17 फरवरी को मेरे ख्याल से फर्स्ट इंटरव्यू इन चारों में आपका ही हो रहा है. तो दूसरा, आपकी हिंदी पे हम थोड़ा सा काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी अगर और अच्छी हो जाएगी तो अपने को और एज हो जाएगा बेहतर मार्क्स प्राप्त करने का. इसमें कोई चिंता की बात नहीं है. हम लोग हमेशा मानता हूं कि 2 वीक के समय में लोगों का जो अभिव्यक्ति क्षमता है वो सुधरने लगती है. तो 2 हफ्ते मेरे ख्याल से आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा. तो दूसरा, आप थोड़ा टाइम का आप लोग ध्यान दें. हमारे पास काम बहुत रहता है, अगर हमने कोई टाइम दिया उसको हम बहुत एडहियर करते हैं. तो कल फिर हम कल शाम को 5:30-6 बजे टाइम लेंगे. देन आई विल अगेन मीट यू एंड आई थिंक इट्स फॉर द डे. अगर कोई सवाल आप लोग जरूर पूछिए. हाँ बोलो. Sorry sir, like day before yesterday Shaurya sir had given some homework with regard to monetary policy transmission, monetary policy or fiscal policy, then RBI's role in controlling inflation. So I have read through that, but one thing what I did not understand is the relation between taxation and inflation. So okay, उसको आपको जो जो पॉइंट है आप लिखिए, उसको हम लोग लेक्चर कर देंगे. ठीक है, टैक्सेशन इन्फ्लेशन. और कोई टॉपिक बताओ सर. एक ही पॉइंट हो तो अभी खत्म कर देते हैं, 1 ही मिनट में खत्म, अगर एक ही पॉइंट है. अदरवाइज बोलो. हाँ बोलो. For now, Bhavna, this is the only point: taxation and inflation, how they are connected. So yes sir, the remaining whatever questions you had asked, I went through it and I have understood those topics. I have not got any major doubts in them. Okay, see, let us consider very quickly. Let's consider the two favorite policy tools of the government by which the state intervenes into it. One is monetary tools and the second is fiscal tools. Okay, monetary tools, you all understand this. They directly influence the volume of money into the market by various means, but through banks and through open market operations and so on. Forget about that. Now come to this. Now just imagine if the government tries to inflate the market with a lot of money by various means, monetary tools I am saying, but and goes for developmental expenditures and this and that and all that. Suppose the government, let's be very specific, suppose the government opts for deficit financing. This is what I am referring to. Suppose the government along with the monetary tools goes for deficit financing. Suppose these are the impending circumstances under which the government has to go for it. So deficit financing, what the government will do?
it will start going for meeting the expenditures, development kind of expenditure, in the hope that this will act as a multiplier, and slowly and gradually it will percolate down to the aggregate demand, and this and that will happen, and the economy will restore itself. जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं से पैसा लेंगे, पैसा लेके आप जो उसको मार्केट में पुश करेंगे, it will balloon out. Now, if you do not commensurately at the same time, the government has no logical system of raising the taxes also at the same time, then you will be leaving more than. See what will happen. It's very interesting. It's very interesting for an economy which is developing. Who pay taxes in a developing economy, such as India, who are actually paying taxes? The middle class or who are the salary class, isn't it? Yes. And what is the focus of the government? The government, after spending something, say on an infrastructure project, suppose the government spends on infrastructure project, after spending something on infrastructure project or other project, the government does not anymore have any control over the flow of the money. Fine. How does the government ensure that this spending that we have done actually causes the precise effect that we want? Suppose the corporates increase their profitability somehow, to sara paisa to wo le gaye phir. It did not reach the people who are directly have the highest marginal propensity of consumption. You are understanding my point? जिनके हाथ में जाना था, जो मार्केट को साइकिल वापस लाने वाले थे रिस्टोर, उनके हाथ तक पैसा कम पहुंचेगा तो कैसे चलेगा? No, that will not give. So if commensurately, along with this act, the government also very rationally raises taxes proportionately or say reasonably, then what the government is doing? The government is spending on one hand, raising fiscals through the tax on the other hand, but raising from whom? From people with whom the government does not want money to lay. You got my point? उनके हाथ से ले लिया और अल्टीमेटली ये साइकिल चलती रहती है, तो फाइनली पैसा उन्हीं के पास पहुंचता है जिनमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, यानी जिनके हाथ में पैसा आएगा तो वो 60% उनका खाने पे ही चला जाएगा. सो इट विल गेट रिसाइकिल. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एंश्योर रिसाइकलिंग ऑफ द मनी सो दैट द मल्टीप्लायर कैन वर्क. Understand my point? So now I'm summarizing. When the government through fiscal, both are fiscal means, when the government decides to go for monetization of deficit or finance the deficit, then the government has to also ensure that the fiscal deficits do not go beyond a point. So at the same time, the government decides to impose or raise the levels of taxes, but the taxes are hitting only those with whom the government does not want money to unnecessarily accumulate, but go to the people who will again recycle it into the. So the government does not want it to be part of corporate saving. It wants to be a consumption expenditure. Yes, it wants to flow to the consumption expenditure of the lower strata, economic strata, so that it comes back into the market, pushes the aggregate demand, and then the things just go on. At the same time, एक छोटा सा last point और है, ये demand जो demand side, ये supply side economics भी साथ साथ हो जा रही है. If you understand my point. Yes. When the government is spending on infrastructure, when the government is spending on the corporates or firms, the government is also ensuring that the productivity or their what you call they call it expectations of profitability, return on investment, उनका profitability उनसे बढ़ता है, तो corporates और engage होते हैं. तो जो push जो इधर से होता है ना, पुश, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, तो अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसमें भी मदद मिलती है कि अच्छा चलो गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट की यही पॉलिसी होने वाली है, सो लेट अस नाउ गिव अवर बेस्ट. तो इस तरह से लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट फिर डालते हैं उसमें. बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स टैक्सेशन एक्ट्स ऑन इन टू मैनर्स. वन, reducing the fiscal deficit of the government. Two, targeting of where the government wants its money to be. Yes. Yes, Sir, in that case, the taxation. So do I continue? Yeah. Sir, in that case, the taxation and the expenditure, whatever they are doing, it should be commensurate. Not necessarily. That is the utopian state, but that doesn't happen actually. Taxation which is raised, taxes which are raised by the government are much less anyway. So it can never compensate for it, and it is not a compensatory mechanism also. The purpose is much larger than that, or macroeconomic purpose. It is not to balance the budget of the government. सर आप लोग कुछ चीज लिख लो, जस्ट राइट डाउन समथिंग. डोंट राइट डाउन. फिस्कल डेफिसिट है क्या? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. आराम से लिखो इसको, जो सौर ने कहा भी क्लियर हो जाएगा. सौर ने बड़ी पूरी कॉन्सेप्ट दिया है, इसको थोड़ा से वो करता हूं, आसान करता हूं. तो आप एक बात ये भी कह सकते हो कि जो आपकी फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग से ही भी आप बात कह सकते हो. अब आते हैं
जो फिजिकल डिफिसिट हुई कैसे उम्मीद हो, आपने क्या किया, आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, ये फिजिकल डिफिसिट है कि हमारे पास 5,000 रुपया महीना मेरे पिताजी ने भेजा, हमने 6,000 खर्चा कर दिया। तो जो हमारा फिजिकल डिफिसिट हुआ है, ये क्या हो गया, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब ये फिजिकल डिफिसिट के बारे में क्या कहा जाता है, जो सौर ने कहा है एक सीमा तक होना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जीडीपी के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि जो फिजिकल डिफिसिट है वो कैसे मीट आउट होता है। पहला क्या है, बोरोइंग्स फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेस, जैसे पब्लिक है, कॉमर्शियल बैंक है। दूसरा, बोरोइंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। तीसरा, डिफिसिट फाइनेंसिंग, क्या होता है, आप नई करेंसी को प्रिंट करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में आरबीआई से नई करेंसी को, यही 3 रास्ते हैं। तीसरा रास्ता गवर्नमेंट कम इस्तेमाल करती है, पहला और दूसरा ज्यादा करती है। अब अगला सवाल, क्या फिजिकल डिफिसिट एडवांटेजियस है। अब ये एडवांटेजियस तभी होगा आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हो। अगर फिजिकल डिफिसिट को आप न्यू कैपिटल एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हो, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो उस प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण हमारे में फ्यूचर इनकम के स्ट्रीम आती है। और अगर इस फिजिकल डिफिसिट को आप इस्तेमाल करते हो ओनली फॉर रेवेन्यू डिफिसिट, तब उसका फायदा नहीं होता है। ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब जो आपने टैक्सेशन का सवाल किया, जो शौर ने आंसर किया कि टैक्सेशन से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, कि आपने लोगों से पैसा लिया, उस पैसे को आपने अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल किया, उससे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसका आपने एसेट बनाया, क्या है, मनी साइकिल होने लग गई। जब मनी सिस्टम में साइकिल करती है तो स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। मेरे ख्याल से सिर्फ शौर कुछ Yes, sir, just one point, because we have been studying this thing in context of inflation, isn't it? Isn't it? Yeah. Yes, So taxation का inflation पर क्या impact है? To understand that, you just have to collate all the concepts that we have learned. Taxation can have some impact on the inflation only in the long run, only on the structural aspects. Okay, it cannot be used as a tool for controlling inflation time and again. Because obviously taxation you can tamper with only once in the year, that is in the budget process, and that is why the preferred mode for long and medium term inflation is monetary tool. That is what we have been doing. अब देखो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, समझने की कोशिश करो। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास एक ही हथियार है सबसे बड़ा, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होता है। कैसे कम होता है, मार्केट में मनी सप्लाई इंपैक्ट होती है। जब आरबीआई में रेपो रेट कम करती है तो मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी बढ़ती है। लेकिन कई बार ये बहुत से इकोनॉमिस्ट, एक मिस्टर कहते हैं लखोटिया साहब हैं, एमपीसी के वो मेंबर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है आपका मॉक इंटरव्यू लेने के लिए, वो आएंगे तो इस टॉपिक को अच्छा डील करेंगे, हमसे शौर्य से बेहतर डील, क्योंकि वो परफेक्ट इकोनॉमिस्ट हैं, हम लोग तो सीख रहे हैं, परफेक्ट इकोनॉमिस्ट हैं। उनका ओपिनियन क्या थी, उन्होंने मुझसे 2 चीज बताई। एक चीज क्या बताई, मार्केट में न तो रूपी के डाउनफॉल को या अपसाइड को कंट्रोल करना चाहिए और न ही इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करो, जब तक वो बहुत ज्यादा बैंड को क्रॉस न कर दे। बोले मार्केट को सेल्फ करेक्शन करने दो, मार्केट को अब सेल्फ करेक्शन करने दो। तो जब आप इन्फ्लेशन को आप जब रेपो रेट से कंट्रोल करते हो तो मार्केट में मनी सप्लाई रुकती है। जब मार्केट में, जैसे मान लो कि आपने रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ाने से फायदा से फर्क क्या पड़ता है कि जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है वो इंपैक्ट हो जाती है, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग महंगी हो गई। जब कॉस्ट ऑफ लेंडिंग महंगी हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने में दिक्कत आएगी।
वो मार्केट से पैसा महंगे दर पे उठाएगा, तो मार्केट ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। तो इन्फ्लेशन को टैक्सेशन से अगर जोड़ के देखने की कोशिश की जाए तो टैक्सेशन के बढ़ने और घटने से क्या फर्क पड़ता है, यह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जब सरकार टैक्सेशन बढ़ाती है तो सरकार उससे क्या करना चाहिए और टैक्सेशन किस पे करती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक इट्स क्लियर। Yes, यस sir. सर, Sir, और क्या sir, from my side, and it is that whether a particular policy should be applied or not, or chosen or not in a particular scenario depends only on one factor, and that is primarily on one factor, not only on one. That is, what is the cause of the present inflation? The inflation, as you know, there are two, three kinds actually. It is demand pull or it is cost push. If it is a cost push inflation, and then you go for this thing, reducing the volume of money in the economy, then the profitability and encouragement of the. आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है सर, अभी आ रही सर? आवाज नहीं आ रही सर। Bhavna, Sir, I am able to listen. Yes, sir. Okay, all right. So I was saying that depending upon two things. One, whether the inflation is a structural one, that is from the supply side, or it is from the demand side. Is it due to the Keynesian principles, that is aggregate demand, or is it due to the production constraints? किसकी वजह से हुआ है? For example, you remember that 1970s OPEC crisis. That was a supply side thing, isn't it? It was not directly because of excess money in the market. No, it was because of supply side economics. And if it is due to supply side economics, then this monetary thing of controlling money supply, that will actually going to hurt it. And that is why stagflation arises. We discussed it that day, isn't it? Yes, sir. So the causes of inflation are the first line to be considered for adopting a remedy. There is no universal thing. Self correction वगैरह भी किन situations में करने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और कब हमको intervene करना चाहिए. It depends upon what is the exact cause of inflation in a particular segment. Short run है कि long run है, किस ऑयल फूड से हो रहा है या कोर इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है या फूड प्राइसेस की वजह से कैसे हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये. बट यस, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में फर्क आ गया है, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में वोलेटाइल आइटम जो आपके फूड एंड ऑयल शामिल है, फूड एंड एनर्जी, तो फूड के प्राइसेस अगर कंट्रोल्ड हो गए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आपके फेवर में करेक्ट होने लगता है. लेकिन कोर इन्फ्लेशन नहीं होता है. लेकिन कंट्री क्या करती है, वो कोर इन्फ्लेशन को भी मानती, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन एक लॉन्ग टर्म है. तो आप लोग क्या करो, सीपीआई लिख लो, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन तीनों को आप लोग बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही ध्यान से समझिए. ये ऐसे तीन टर्म है जो रोज पेपर में आते ही रहते हैं, तो क्या पता पूछ लिया जाए. सर, एक डुअलिज्म भी आया था उस दिन, आपने जो आर्टिकल वो करवाया था राव वाला, रोनित राय या जो भी उनका नाम था. यस, रतिन रॉय आर्टिकल डिस्कस किया था. नीलम, आप ऐसा करना, चैट पे जितने आर्टिकल की फोटो कॉपी गई आप पढ़ देना उसको. ठीक सर. आप जो अपना टेलीग्राम चैट है, इसमें हम लोग कुछ पेपर्स की फोटो कॉपी डालते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हो. जैसे आप लोगों को हमने एडवाइस किया है कि एक्सप्रेस हिंदी पढ़ो, लेकिन जो इकोनॉमिक्स की पेपर है आप लोग इसको हम ही पढ़ते हैं, हम पढ़ते शौर पढ़ते हैं, तो उसके हम लोग कई बार जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसका हम डाल देते हैं फोटो, और कई बार उसको अंडरलाइन भी कर देते हैं. आप अंडरलाइन ही पढ़ देना. जी सर. आप चैट एक बार देख लिया करो, क्लास शुरू होने के पहले 1-2 घंटे पहले देख लिया करो, तब तक हम लोग सारा कुछ डाल देते हैं उसमें. इन्फ्लेशन को डुअलिज्म से जरूर जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा. सर ने खुद भी कराया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. सर ने वो बताया भी था कि इसका कोर जो मैसेज है वो क्या है. डुअलिज्म बहुत जरूरी समझना, मुझे लगता है पूछेगा, बिकॉज यू नो दैट मोस्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, नॉट मोस्ट ऑफ बट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इज इन द कैश साइड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैश साइड में है. तो आपसे मैंने बोला था मॉनिटरी ट्रांसमिशन पढ़ के आने के लिए. नाउ यू गेट व्हाई मॉनिटरी ट्रांसमिशन विल नॉट वर्क एज स्विफ्टली, क्योंकि ज्यादातर चीज तो बाहर है, बैंकिंग क्रेडिट के एक्सपेंस से बाहर है सब. तो मॉनिटरी ट्रांसमिशन तो बैंकिंग वाले ही परव्यू में होगा ना. Those who are outside this credit system, they will not be affected by your monetary policies. That is what happens. आपको एक एग्जांपल देके तब आप फिर इस पर सोचिएगा जल्दी से. You know that minimum support price thing, minimum support price, okay, given for all the crops. So minimum support price has a tendency to be revised upwards,
when the lobbies work and pressure groups work, and being a welfare state, the government has a tendency to revise the minimum support price upwards. वो बढ़ाते जाते हैं, नहीं भी बढ़ाएं. तो now tell me कि minimum support price पे सारा चीज खरीद लिया, बहुत सारी चीजें फूड ग्रेन्स वगैरह ले लिया, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, पीडीएस के रेट्स क्या हैं? Aren't they heavily subsidized? Yes, तो ये मिसमैच देख रहे हो आप. दिस इज द डुअलिज्म दैट कम्स इनटू पिक्चर. दिस इज द काइंड ऑफ डुअलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आप क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा बहुत सारा किसान को दे रहे हैं और उससे फूड ग्रेन ले रहे हैं, लेकिन जब वो किसान लोग जब खरीदने जाते हैं तो उसमें से बहुत सारा पैसा बच जाता है, क्योंकि आपका पीडीएस वाला जो है बहुत लो रेट पे है. वेयर विल दैट एक्स्ट्रा मनी गो? You got my point. That's how fiscal policies are contributing to ballooning of money in the hands of unorganized sector. और उसमें monetary policy पूरी तरह helpless रहती है. You get the picture? Yes, sir. Think Yes, over it. तो कोई और इशू किसी के पास है या मनदीप कुछ इशू है? No, sir. Fine, sir. तो जो आपकी सारी रिकॉर्डिंग है आज रात में सब पोस्ट करा दूंगा. मनदीप कल एब्सेंट थे, वो भी सुन लेंगे. दूसरा, आप लोग अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को भी देखो, बोलने की स्टाइल को भी देखो, बोलने की रफ्तार को भी देखो, सब कुछ देखो. दूसरा जो नॉलेज है वो तो आप लोग गैदर करोगे. कल आकाश और कहते हैं नीलम, आप लोग कल इनिशिएट करना कहते हैं डिस्कशन को, देन विल टेक. और जैसे भावना टॉपिक्स को लिखकर डाल देती चैट में, आप लोग भी डालो, भले ही रिपीट हो, ताकि हर आदमी का माइंड अप्लाई हो, हर आदमी इस पार्टिसिपेट कर सके. सर इससे कहें कि क्वेश्चन भी डाल दें सर, ये लोग क्वेश्चन भी डाल दें अगर तो अच्छा रहेगा सर. हाँ, क्वेश्चन में आप लोग डाल दीजिए, ये भी अच्छी बात है. आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, वो भी डाल दीजिए, तो हम लोग उसको पढ़ देंगे, थोड़ा एक बेहतर तैयारी हो सकती है. ये भी डाल सकते हैं आप लोग. यस. और कुछ? Thank you, sir. ओके, टेक केयर. टुमारो विल सी अगेन. बाय. Thank you so much, sir.